More damaging evidence in the alleged forced conversion racket. A video has now emerged of the arrested accused in this case, Mohammad Umar Gautam, where he's seen and heard boasting about converting Hindus to Islam. The probe by the Uttar Pradesh police meanwhile reveals that Umar Gautam's organization, the Islamic Dawa Center, has links with a Qatar-based associate of the controversial Islamic preacher Zakir Naik and had cells in multiple states including Haryana, Rajasthan and Punjab. Our crime bureau gets you our top story. कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया, उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है. Damning video evidence of a conversion racket busted by the Uttar Pradesh anti-terror squad. This is one of the arrested accused in the case, Mohammad Umar Gautam, who admits to the conversion ring in an old video. अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं. हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया, उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है. जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है. On Monday, Umar Gautam and his associate Mufti Qazi Jahangir Kazmi were arrested by the UP ATS from Delhi's Jamia Nagar, and the two are presently in police custody. The role of an employee of the Ministry of Women and Child Development is also under the scanner. He is believed to have helped the Islamic Dawa Center or IDC spot youth with hearing and speech disabilities and women who could be potentially targeted for conversion. This racket bust has blown the lid of a much larger conversion conspiracy. The Dawa Center is suspected to have received foreign funds from NGOs based in the US, Qatar, Kuwait, among other nations. The funds were allegedly diverted to the center through several India-based FCRA-registered NGOs. Sources also say that the Dawa Center had links with Islamic Online University founded by a Qatar-based associate of Zakir Naik, Dr. Bilal Phillips. It is learned that arrested accused Umar Gautam also has close links with Global Peace Center, which is deeply involved in conversion activities, especially in Haryana's Mewat area. While the Yogi government has ordered slapping of National Security Act against those involved, opposition Congress accuses the state government of sleeping over cases of religious conversions. संविधान, समाज और सरकार दोनों इस ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के धंधे के खिलाफ है और जो भी इसमें शामिल है, जहां से भी सुपारी लेकर के ये काम हो रहा है, वो बचेंगे नहीं. ये बात समझ लेना चाहिए. अंधेरे में रखकर गुमराह करके धर्म परिवर्तन जायज नहीं है. कानून साफ है और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए. और कठोरतम कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए. जो बैठ के सोती रही, कानून का उल्लंघन होते रहा, धर्मांतरण होता रहा, उन पर तो ऐसे लगे, पर जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये अपने लिए क्या सजा की तजवीज करती ये भी बता दे नैतिकता के आधार पे. दोषी तो ये भी हैं. Over 60 Dawa institutions across the country are now under the watch of intelligence agencies, and officials suspect that the UP conversion racket is just the tip of iceberg. Munish Pandey in Delhi for India Today. Controversial Islamic preacher Dr. Zakir Naik's name is also under the scanner in this Uttar Pradesh forced conversion investigations. He was accused of being preacher of hate. He made headlines after the Dhaka terror attack, where Bangladesh police say his speeches radicalized the Dhaka terrorists. The government, of course, has been trying to have him extradited from Malaysia to face the law. I am Zakir Naik. Controversial Islamic preacher Zakir Naik is under the scanner in the Uttar Pradesh forced conversion investigations. Top sources in Uttar Pradesh police say Naik's name cropped up repeatedly during investigation of radicalization and conversion of the weak and vulnerable hearing and speech impaired youth to Islam.
The anti-terror squad of the UP police is also probing the link of the two Muslim clerics who ran the Islamic Dawa Council in Delhi's Jamia Nagar area with a Qatar-based Salafi preacher and his links with Zakir Naik. Police maintain money to lure the weak and the vulnerable and convert them to Islam came through some non-government organizations that are being investigated. हमारे पास इसके पुख्ता रिकॉर्ड हैं कि ये जो कन्वर्शन है जी ये ल्योर करके कराया गया है, पैसे के लिए कराया गया है, नौकरी के लिए कराया गया है, शादियों के लिए कराया गया है और ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टच करके कराया गया है जिनको इन चीजों की अत्यंत आवश्यकता है और नॉर्मल तरीके से वो सोसाइटी में चीजें नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से चीजें हमारे पास एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये रैकेट और भी बड़ा हो। This is not the first time that Zakir Naik's name has cropped up in investigations. His name had cropped up after the Dhaka terror attack. Both the accused in the Gulshan Enclave terror strike in Dhaka, Rohan Imtiaz and Nibran Islam, had reportedly been radicalized hearing speeches of the radical Islamic preacher Zakir Naik, according to investigations in Bangladesh. Zakir Naik's name also cropped up after a series of raids and arrests of highly radicalized young Muslim youth wanting to fight for the Islamic State or Daesh. The Enforcement Directorate probed the money trail and in its charge sheet said inflammatory speeches and lectures have influenced and incited a number of youth in India to commit unlawful activities and terrorist acts. The charge sheet also reads, his thoughts created disharmony amongst various faiths and created hatred amongst people following different faiths. Zakir Naik has, however, denied charges of inciting youth to carry out terror attacks. Yes, he was my fan. And there are millions of fans of mine throughout the world. And particularly in Bangladesh, Alhamdulillah, more than 90% know me and more than 50% are my fans. So he may have been my fan, but to say that I inspired him to kill innocent human beings is devilish. He is currently in Malaysia and India has been trying to have the controversial Islamic preacher extradited to face the law here. Bureau Report, India Today. The Uttar Pradesh police are very clear that the tentacles of this forced conversion racket are spread across multiple states, including the Northeast. Now, joining me on India First is Ghanshyam Tiwari of the Samajwadi Party. Gopal Krishna Agrawal represents the Bharatiya Janata Party. I have Atikur Rahman, a well-respected Islamic scholar, and Dr. Vikram Singh, former Director General of the Uttar Pradesh Police. But before I come to my guests, I quickly want to cut across to Lucknow, where Mohsin Raza, Minister in the Yogi Adityanath government for Minority, Waqf and Hajj, joins me on the broadcast. Mohsin Raza साहब, ये जो विवादित इस्लामिक प्रचारक है जाकिर नाइक, इनका नाम जांच में उभर कर आ रहा है। आप हमें उनकी भूमिका के बारे में और क्या बता सकते हैं? देखिए गौरव, जो सवाल आपने पूछा इसको लेकर, जाकिर नाइक को लेकर, तो ये तो कांग्रेस और उनके समर्थित दलों का पाला हुआ कहीं ना कहीं प्यादा था और इसी को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया था और उससे निकले हुए ये रूट हैं जो आज धर्म परिवर्तन की बातें आ रही हैं, धर्मांतरण कराते हुए लोग मिल रहे हैं, ये इनके कनेक्शन सीधे उसी से जुड़ते हैं क्योंकि उसके इस प्रोग्रामों में जहां पर वो धर्मांतरण कराता था वहां ये सारे कांग्रेस के नेता जाते थे, उसका मन साझा करते थे, उसको महिमा मंडित करते थे। कितनी पिक्चरें दिखाएं, आपके पास तमाम विजुअल भी होंगे। तो ये तो सवाल कांग्रेस से पूछिए। और कनेक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि वो इन्हीं के संरक्षण में पल रहा था, धर्मांतरण करा रहा था और ये उसी से निकले हुए उसके जो और रूट हैं, ये उसके रूट्स का काम यहां हो रहा था उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यहां आदरणीय योगी जी की सरकार है, यहां ये सब नहीं चल पाएगा। लेकिन चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आपने प्रमोद तिवारी की बात सुनी, या समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो कथित जबरन धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये तो बरसों से हो रहा है। पहले भी जाकिर नाइक की भूमिका शक के घेरे में थी, लेकिन कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? देखिए गौरव, साफ सी बात है कि विपक्ष ऐसे लोगों को पहले बढ़ावा देता है, इसीलिए ये धर्मांतरण के कानून के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि धर्मांतरण का कानून न लाया जाए। क्योंकि यही लोग हैं
जो पहले इनसे धर्म परिवर्तन कराकर लोगों को बढ़ाते हैं, तादाद जब बढ़ जाती है, यही लोग कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी या ममता जी के लिए मंच पर खड़े होकर मुल्ला मौलाना वोट मांगने जाते हैं। तो ऐसे ही लोग दिखाई देते हैं उनके मंच पर, और इनसे वो अपनी पूरी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो पूरा राजनीतिक लाभ कौन लेता है? तो इसलिए उनको तो दुख होगा। हम देशहित के लिए, जनहित के लिए कानून लाते हैं, लिहाजा हम ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं खड़े दिखाई देंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अगर यह कार्रवाई पहले भी हो रही थी तो चुनाव से ठीक पहले पैसे और भय के बल पर धर्मांतरण पर जांच का मुद्दा अभी आपकी सरकार क्यों उठा रही है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रही है? ऐसा विपक्ष का आरोप है। गौरव, देखिए, अब हिंदुस्तान में किसी तरह का जिहाद या गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं चलेगा। और ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम एक विशेष समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट तो बहुसंख्यकों को किया गया। इनसे पूछिए कि ये भगवा आतंकवाद कौन है, किसने कहा था? भगवा आतंकवाद का नाम किसने दिया? कांग्रेस ने। आतंकियों को महिमा मंडित कौन करता दिखाई दिया? कांग्रेस। और आप एक तरफ कहते हैं कि ये कानून न लाया जाए, ये कानून जो लाया जा रहा है एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और अगर आप अदालत खुलवाते हैं 3 बजे रात में आतंकियों के लिए, तो दूसरी तरफ आप हमारे साधु संतों पर मुकदमे लिखाते हैं आतंक में, आतंकी डिक्लेयर करने के लिए। तो आप पहले अपने गरेबान में झांकिए। और आप क्या करते हैं? आप तो देश के बहुसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं इसकी आड़ में, और अपनी दुकान चलाना चाहते हैं एक विशेष जाति या एक समुदाय को दिखाकर। तो ये तो आपका चरित्र हो सकता है। हम तो देशहित में कानून लाते हैं, और हम फिर कह रहे हैं कि ये कानून आएगा और कड़ाई के साथ में हम पालन भी करेंगे। और जो लोग इसमें शामिल होंगे, जिनके तार जुड़े दिखाई देंगे, वो भी बिहाइंड द बार होंगे। लेकिन आप ही की सरकार है, तो चाहे वो कथित लव जिहाद की बात हो या जो अब जिसे कहा जा रहा है धर्मांतरण जिहाद, क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि एक धर्म विशेष को मानने वाले जो लोग हैं वो दबाव में रहे, उन पर दबाव बना रहे? देखिए गौरव, देश में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहां पर किसी तरह का कोई जिहाद नहीं चलेगा, और ना ही यहां पर गलत तरीके से धर्मांतरण कराने दिया जाएगा किसी को। और जो लोग आतंकियों को महिमा मंडित करते हैं, जो समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं, वो है कांग्रेस, वो है समाजवादी पार्टी, वो है आम आदमी पार्टी, और या ममता जी हैं। आप देखें कि आतंकवादियों के लिए 3 बजे अदालत कौन खुलवा रहा है बैठकर जी? आतंकवादियों को रिहाई दिलाने के लिए 3 बजे अदालत खुलवाती है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के वकील जाकर खुलवाते हैं। और या अगर आप देखें तो आतंकवादियों पर आंसू बहाता कौन मिलता है? वो राष्ट्रीय अध्यक्षा मिलती है कांग्रेस की। और अगर आप देखें कि इनोसेंट कौन कहता है उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव जी कहते हैं, या उनकी सरकार में कहा जाता है कि आतंकवादी जो है या इनोसेंट हैं, इनको छोड़ देना चाहिए जेलों में जो बंद हैं। तो इस तरह की सोच, और फिर यही इन्हीं लोगों को जब ये बाहर निकल कर आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखकर धार्मिक दिखाई देते हैं, तो इनको मंचों पर ले जाया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है, यही वोट मांगते हैं, यही एक समुदाय के नौजवानों के लिए आइडियल बनते हैं, फिर वो आगे गलत रास्ते चुनने लगते हैं। तो कम से कम इस बात के लिए सोचना चाहिए कि गलत चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई काम नहीं करने देगी देश के अंदर। ये मानकर चलिए, हम गलत बात के समर्थक नहीं है, और गलत बात के समर्थक अगर कोई है तो वो विपक्ष है। ठीक, लेकिन अगर पुलिस ये कह रही है कि ये जो धर्मांतरण की साजिश है ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व के कुछ राज्य, कहा यह जा रहा है कि ये जो इस्लामिक दावा सेंटर है ये कई जगह इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त है। अगर ये सच है तो क्या एनआईए की जांच इस पूरे प्रकरण पे होनी चाहिए, और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस केंद्र के साथ मिलकर या केंद्र की सहायता मांग रही है इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए? गौरव, देखिए, इसमें हमारी एजेंसियां बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये उन्होंने ही खुलासा किया है, क्योंकि पिछली सरकारों में तो उनके हाथ बंधे रहते थे, वो नहीं कर पाती थी, इतनी स्वतंत्रता से उनको काम करने की आजादी नहीं थी। आज कम से कम उनको एक आजादी है कि वो अपना काम बाखूबी अंजाम दे रही हैं। तभी इतने बड़े रैकेट को पकड़ के हम देश के सामने ला रहे हैं कि धर्मांतरण जैसा जो काम कांग्रेस के समय में हुआ करता था, उसके रूट कहां तक हैं, हम वहां से रूट ही नोचने का काम कर रहे हैं, हम वो ग्रास रूट से ही काटे दे रहे हैं। तो इसलिए देश की एजेंसियां और राज्यों की एजेंसियां मिलकर ऐसे सारी चीजों को
खत्म भी करेंगे और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका पर्दाफाश करके हम उनको जेल में भी डालने का काम करेंगे। मोहसिन रजा साहब, आप मेरे साथ जुड़े इंडिया फर्स्ट पर बहुत बहुत धन्यवाद। So that's the minister in Yogi Adityanath's government who says the guilty will not be spared.